am going into the details of compounding, because when we simplify it, like when I say that when you're young, even if you invest 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees, at the time of retirement you will be in crores. So how will that be in crores? Because the magic of compounding will work. So the question always comes, how does the compounding even work, right? Because even if you go in stock market is up, sometimes it's down, sometimes it's up. So how does the compounding even work? What is compound interest? How is it so magical, right? So today we will learn now that how does the compounding work in real life. Is the graph is that same which we actually see? How should we calculate CAGR? And everything about how it really works. And I'll also show you how it accounts for the market bulls and market peers, and how to calculate CAGR on those also, right? So what is compounding basically? Compounding is a growth. But why is it so magical? Because when you are rising up by a certain percentage. That certain percentage may be same, that certain growth rate may be same, right? But it's every time a new base. Suppose let's take we are in the base year, so we are starting from 100 rupees. Okay, so on 100 rupees you have grown by 10%. After 1 year it is going to be 110. Now in the year 2 you will start with 110, not with 100, and 10% on 110 will be 121. In third year, when you start with 121 and add up by 10% growth, it's going to be 133, and again it's going to be 146, and so on and so forth, and so on and so forth, right? So every time it's a new base, right? The new calculation, though the rate is same, but the percentage on which it comes is a higher base. And that's where the magic of compounding works. Like I can show you in one sheet. Let's see. Suppose we are starting with 100 rupees. Okay, and हम इस पे 10% ही ग्रो करते हैं. मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल्स लेती हूँ. फाइन. सो व्हाट वी विल से, I am growing with 100 plus bracket open 10% of this 100, right? So this is my start amount, right? This is my opening. Let's say this is my opening, this is my rate, and this is closing. Okay, and let's take this as year, and let's it have a year 1. Okay, so चलो मैं सपोज 25 years तक ले लेती हूँ, right? So let's say for 25 years. Okay, and हम इसी फॉर्मूला को, let's say this is this. Okay, and हम इसको extend करेंगे. This we need at 10, this we need at 10 fixed. Okay, so see, can you see the drastic difference? So just a moment. Now you can see as I'm reducing. So to make it clear, now you can see the exponential growth, right? It has come to 1083 because अब पहले टाइम, जब आप पहले टाइम बना रहे थे, राइट, तो यहाँ पर आप सिर्फ 11 से ग्रो कर रहे थे, यहाँ पर आप सिर्फ 10 से ग्रो कर रहे थे, यहाँ पर आप 11 से ग्रो करें, यहाँ पर आप 13 से ग्रो करें, राइट? तो जो जंप था, जो अमाउंट था, दैट गोज ऑन गेटिंग बिगर, एंड द सेम थिंग हैपन्स हियर, राइट? आप देख सकते हैं आप कितना ग्रो करें, राइट? अब आप पहले बार में 10 से ग्रो करें, बाद में आप
सेकंड में आप 11 से ग्रो करें, फिर 12.1 से, फिर 13.3 से, परसेंटेज वही है बट आपका जो नंबर है, बेस है, वो बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर तो आप 98 से ग्रो करें, राइट। तो उस वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट्स अ लॉट, यू कैन सी। इसको हम एक बार प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट्स प्लॉट इट, लेट्स हैव अ लाइन चार्ट, ओके, सी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये चार्ट जा रहा है ऊपर। फाइन, is that okay? So this is the way compounding works. You know what we think, that it goes very flat, it goes very flat for so many years. Let's move it to let's let me make it to um, let's say 50 years. Okay, okay, so this is 51 years, no problem. I'll plot it again for you. Okay, fine, I'll plot this again. Okay, this is the closing. So let's plot this. Let's plot the line chart. Can you see? Initial years कैसे जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत फ्लैट लग रहे हैं, बट आप देखो बाद में कैसे जा रहे हैं. This is the magic of compounding. This is the benefit of compounding. Let me make it more clearer for you. So let's have it for कितने ईयर्स हम जा रहे हैं. लेट्स सी 226 ईयर्स. इट्स नॉट ईयर्स बिकॉज इट्स नंबर्स. सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप एवरी एवरी क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरी फोर्टनाइटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरी वीकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वट एवर इट मे बी. सो जब हम इसको 226 टाइम्स पर लेकर जाते हैं, ओके, तो लेटस प्लॉट दिस ऑल्सो. आप देख सकते हैं आपने 100 रुपये से शुरू किया था, और आपका ये जो नंबर है 100 रुपये से वो कहाँ पहुँच गया है, राइट. हाउ मेनी फिगर्स, हाउ मेनी डिजिट्स फिगर्स इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू. सो कम ऑन, लेट्स प्लॉट दिस ऑल्सो. यही दिखा रहा है, देखो, आप देखो. इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैट है, कुछ हो ही नहीं रहा, पर बाद में देखो इट्स फ्लाइंग एक्सपोनेंशियली, जैसे किंगडम में होता है, राइट. सो यू नो कंपाउंडिंग इज मैजिक, इट्स रियल मैजिक. इसलिए ये मैजिक हमें नहीं समझता, हमारे ब्रेन में नहीं जाता, बिकॉज वी फील, बिकॉज इनिशियल ईयर्स जब हम कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कि आप यंग हो, अभी आप इन्वेस्ट करो, इनिशियली 1 2 3 4 5 6 साल 10 साल तो लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है. ऐसा लगता है आप फ्लैट पे ही हैं, उसी रिटर्न पे चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हो रहा है. बट व्हेन यू सी बाद में वो किस रेट पे ग्रो हो रहा है. So you know compounding is a game of patience. You need to be patient, right? Because for the longest time you would feel that nothing is working, but that is when the things are really working, right? Okay, so now I'd like to illustrate more on how does the compounding work in real life. Does the compounding works in real life also like this, or something else? So for that, let's consider equity market. Okay, so now I have took this example, right? In this example it is Jan to December, and इसमें last 20 years के निफ्टी के रिटर्न्स हमने डाले हुए हैं. फाइन, तो यहाँ पे हमने निफ्टी का डेटा डाला हुआ है, 4%, 7%. निफ्टी जैन में 4% अब गया, फेब में 7% अब गया, देन मार्च में -7% हो गया, अप्रैल में माइनस हो गया, मई में माइनस हो गया, जून में फिर प्लस हो गया. आप ओवरऑल देख सकते हैं प्लस हुआ, माइनस हुआ. इसके बेस्ड
बेसिस पे मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जनवरी में, ओके और वो प्लस हो रहे हैं, प्लस हो गए 107 हो गए 99 हो गए, और उसमें मैंने यहाँ पे पूरा प्लॉट करा हुआ है, ओके तो इसको अब हमने प्लॉट करा हुआ है। एक पॉइंट पे ये 100 रुपीज़ 264 हो गए, फिर बढ़ गए, फिर ये 100 से 186 रह गया। सो इस तरह से इसमें प्लस माइनस होके फाइनली जो अमाउंट था वो 927 हो गया, ओके अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट्स गोइंग अप गोइंग डाउन, गोइंग अप गोइंग डाउन। इसको मैंने एनुअलाइज्ड भी निकाला है, राइट। सो व्हेन यू सी दैट 100 becomes 927, 100 becomes 927 in a span of 20 years, right, in a span of 20 years. So we can calculate CAGR. How we calculate CAGR is the resultant amount has to be divided by the actual amount and raised to the power of 1 divided by number of years and minus 1 करेंगे क्योंकि हम इसकी present value निकाल रहे हैं, okay. So आपका जो भी अमाउंट था, जो आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, वो 927 हो गया, ओके। सो व्हाट यू कैन से इज यहाँ पर अगर आप 11.78% से आपका अमाउंट CAGR से ग्रो हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में ये हुआ कि 100 107 हुआ, 100 230 भी हुआ, यही 100 365 भी हुआ, 568 भी हुआ, बट यही 100 186 भी हुआ, 179 भी हुआ, 195 भी हुआ, ओके। सो ये पैसे इस तरह से ग्रो हो रहे हैं। बट अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा मैं 12% के CAGR से ग्रो हो रहा था, तो इट कैन बी लाइक दिस, 100 आपका 112 हुआ, 125 हुआ, तो इसको मैंने 12% के CAGR से लाइन से ग्रो किया है, राइट, एंड इस तरह से ग्रो किया है, अगेन ये 927 ही है। तो आप अज्यूम करिए कि आपका पैसा ऐसे 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 ग्रो हुआ, राइट, या फिर डायरेक्टली 12% से ग्रो हुआ 927 तक। सो अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो मेरा कंसर्न ये है कि दोनों से अगर आप जाएंगे तो आप पहुंचते वहीं हैं, आप पहुंचते 927 पे ही हैं, बट जाने का रास्ता एक्चुअल में बहुत ऐसा होता है, राइट। आप पहुंचते वहीं हैं, बट अगर मैंने इसी को प्लॉट किया है तो 100 जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 927, राइट, 100 927 पे ही पहुंचा है, बट ये पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा था। 7th ईयर ऐसा था, 9th ईयर ऐसा था, 9th ईयर में लगा इतना नीचे आ गया, ये सब ईयर्स इस तरह से जा रहे थे, राइट। इट इज एक्चुअली दिस, बट what we think it is, we think it is this 12% रेगुलर 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 ग्रोथ हो रही है, दो ये यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, राइट। सो अगर आप इसमें 1 करोड़ भी प्लॉट करेंगे, आप इसमें जो भी प्लॉट करेंगे अमाउंट, तो वहीं वहीं से शुरू होगा, वहीं पहुंचेगा, and this is the magic of compounding. So you don't have to expect this curve, even if when you are investing in stock market you don't have to expect कि मेरा 12% से कंटिन्यू ग्रो होगा, वो ऊपर नीचे जाएगा, बट वो अल्टीमेटली पहुंचेगा, okay. So you have to